اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، سرکاری گاڑی واپس نہ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ غیر مجاز استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی FIR درج کروائی جائے گی۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا فیصلہ۔ جبکہ بیکار سرکاری گاڑیوں کی نیلامی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ممبران کی جانب سے سفارشات پیش کی گئیں، اخراجات میں کمی کی تجاویز بھی سامنے آئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گاڑیاں واپس نہ کرنے والے ہوشیار، گاڑیاں واپس نہ دیں تو مقدمہ درج ہوگا۔ سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا بڑا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی صدارت ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کا اجلاس ہوا۔ شرجیل میمن نے سرکاری گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال کی روک تھام پر زور دیا، بیکار گاڑیوں کی شفاف نیلامی کروانے کا بھی حکم دے دیا۔ اجلاس میں غیر مجاز استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی FIR درج کروانے کی بھی ہدایت دی گئی۔ کمیٹی اجلاس میں ممبران نے اپنی سفارشات پیش کی، اخراجات میں کمی یقینی بنانے کی تجویز بھی دی گئی، نیلامی کا عمل شفاف بنانے اور فنڈز ترجیحی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کی تجویز، گاڑیوں کی الاٹمنٹ اور ریگولیٹ کرنے کے لیے خطوط پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سعید غنی، علی حسن زرداری اور چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، سیکرٹری GA محمد نواز سوہر شریک تھے۔ کون پڑھتا ہے، کون نشہ کرتا ہے، سب سامنے آ جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا استعمال، سرکاری کالجز میں طلبہ کی میڈیکل اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 رکنی کمیٹی قائم، DG کالجز سندھ، متعلقہ ضلع کے ریجنل ڈائریکٹر اور متعلقہ کالج پرنسپل کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ اسکریننگ ٹیم کسی بھی طالب علم کا میڈیکل ٹیسٹ کر سکے گی۔ تعلیمی اداروں میں سیمینار، ورکشاپس اور آگہی سیشن بھی کرائے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں فرحان خان کی رپورٹ میں۔ بل کے معیاروں کو محفوظ بنانے کا عزم، تعلیمی اداروں میں طلباء کی میڈیکل اسکریننگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میڈیکل اسکریننگ ابتدائی طور پر سندھ سرکاری کالجوں میں کی جائے گی۔ کالج ایجوکیشن میں 3 رکنی کمیٹی بھی قائم، ڈائریکٹر جنرل کالج سندھ، متعلقہ ضلع کے ریجنل ڈائریکٹر اور متعلقہ کالج پرنسپل کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ میڈیکل اسکریننگ ٹیم کسی بھی سرکاری کالج کا اچانک دورہ کر کے طالب علم کا میڈیکل ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں سیمینار، ورکشاپس اور آگاہی سیشن بھی کرائے جائیں گے۔ پلاٹوں پر قبضہ، شہریوں کا اغوا، جعلی مقدمات اور رشوت وصولی۔ کراچی پولیس ایک بار پھر سنگین الزامات کی زد میں۔ تاجر مظہر علی نے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ASI پر اغوا اور تشدد کا الزام عائد کر دیا۔ IG سندھ سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ پلاٹوں پر مبینہ قبضہ، شہریوں کا اغوا، جعلی مقدمات اور رشوت کی وصولی۔ کراچی پولیس ایک بار پھر سنگین الزامات کی زد۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران تاجر مظہر علی نے الزام عائد کیا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ASI نے پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ 21 دسمبر کو ڈیفینس سے اغوا کیا اور سین میں لے جا کر برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ رہائی کے لیے 25 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی، تاہم 6 لاکھ روپے ادائیگی کے بعد خواجہ اجمیر نگری تھانے میں پرانے مقدمے میں گرفتار کروا دیا۔ مجھے 21 تاریخ کی رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے کے درمیان ڈیفینس سے اغوا کیا گیا اور ساجد نامی اہلکار تھا، وہ CIA صدر لے کے گیا، ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم تھی، اور وہاں پہ لے جا کے راستے میں میری گاڑی کا ٹریکر کا پوچھ لیا تھا کہ کہاں لگا ہوا ہے۔ بینک لیزنگ کی گاڑی ہوتی ہے، اس کا ٹریکر LCD کے پاس ہی ہوتا ہے نا، تو میں نے بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں لے جا کے میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی تھی اور وہاں پہ ٹریکر گاڑی کا راستے میں ہی کاٹ دیا تھا انہوں نے۔ اس موقع پر مظہر علی کے والد حامد علی نے بھی بیٹے کے اغوا، رشوت وصولی اور مکان پر قبضے کے الزامات عائد کیے اور کہا کہ اس سارے عمل میں SIU پولیس اہلکار ساجد اور دیگر ملوث ہیں۔ 25 لاکھ روپے کا تقاضا کیا تو ہم نے بولا بھائی ایسا کیا گناہ کر دیا اس نے، تو وہ صاحب کہنے نہیں ہمارے کو تو اوپر سے ہے، اس سے ہمیں یہ کرنا ہے، اس کو ہم جو نا پھانسی اس پہ چڑھا دیں گے، مطلب گولی وولی مار دیں گے اور آئس رکھ دیں گے، کلاشن کوف رکھ دیں گے۔ جب میں اوپر کمرے میں گیا ہوں، کیا نام ہے ان کا بھی نام مظہر صاحب ہے نا، SHO مظہر صاحب کے بعد، تو انہوں نے بولا بھائی ہم تو ثابت بندہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم جو نا ٹانگوں پہ گولیاں مار کے چھوڑتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑتے۔ تاجر مظہر علی اور اس کے اہل خانہ نے IG سندھ سے اپیل کی کہ اس پورے واقعے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کو لگام دی جائے۔ کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ سلمان سلیم، City 21۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سندھ اسمبلی اجلاس میں کراچی حیدرآباد موٹر وے سندھ کے ہائی ویز کے ٹول پلازوں پر زیادہ ٹول ٹیکس وصولی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اجلاس میں ہائی ویز کی مرمت کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے وفاق سے مطالبہ کیا گیا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر جلد شروع کی جائے۔ اپوزیشن ارکان کی حج کوٹا اور CNG لائسنس منسوخ کرنے کے متعلق تحریک مسترد کر دی گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔
स्पीकर ओवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन हीर सोहो ने टोल टैक्स के हवाले से करारदाद पेश की और शिकवा किया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स बढ़ा दिए। कराची हैदराबाद मोटरवे के टोल टैक्स में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। आया जो टैक्स वरितो पियो वञे उहो तव्हां जॾहिं तव्हां हिते छो ई न पिया करो त तव्हां टैक्स वठो पिया उहो आया उहो गवर्नमेंट वटि जमा थिए पियो कोन। ॿियो सर जेका शइ तमामु घणी महसूस थी आहे रियली सर जेके हिन वक़्तु जेके हुननि जा प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी जा प्रोजेक्ट हलनि पिया तक़रीबन 20 सर प्रोजेक्ट्स मुख़्तलिफ़ हाईवेज़ जा मोटरवेज़ जा जेके आउं मैंशन कंदसि सर उते किथे बि सिंध जो को बि मोटरवे को बि हाईवे न आहे। इस मौके पर वजीर कानून जियाउल हसन लंजार और सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध के साथ नाइंसाफियां कर रही है। सिंध की शहरों पर हादसात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर शुरू करवाई जाए। सूबा सिंध के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से निहायती ज्यादतियां बरती जा रही हैं और जो सिंध की वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के पास है उनका ना सिर्फ बुरा असर है लेकिन उस रोडों सड़कों की वजह से रोजाना की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। वहां जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां पर जिस तरीके से हादसात हो रहे हैं जिस तरीके से इस वक्त बहुत बुरा हशर है उन सड़कों का इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत है। हर हाल में वफाकी हुकूमत में ये लाजिम है कि जिस तरह बाकी स्कीमों के लिए पैसे रखते हैं इस तरह उन्होंने हैदराबाद से सक्खर के मोटरवे के लिए इन्होंने पैसे रखने चाहिए। इजलास में वजीर तालीम सरदार शाह ने कॉलेज एजुकेशन के मुतालिक अरकान के सवालात के जवाब दिए। कहा कि कराची में 154 कॉलेजेस हैं जिनमें टीचिंग स्टाफ की किल्लत है। नए कॉलेज टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं। 154 कॉलेजेस कराची में हैं। 2.25 लाख के करीब बच्चे कराची में पढ़ रहे हैं, वही यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। अगर टीचर नहीं होते तो आमिर भाई तो नहीं पढ़ा रहे ना उनको। वहां पे टीचर्स मौजूद हैं। जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे हम मजीद असातिज़ा वहां पे देके उनको हम इवनिंग की क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। वो नीड बेस्ट अगर कैपेसिटी है मॉर्निंग में शिफ्ट में बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं तो फिर जरूरत नहीं है इवनिंग में जाने की। इजलास में अपोजिशन अरकान की हज कोटा और CNG लाइसेंस मंसूख करने के मुतालिक तहरीक मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवेद ने इजलास जुम्मे के रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन शादिब रजा के साथ अजय जमाल, ECT 21। महकमा खुराक सिंध का 12 ग्रेड का अफसर करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस निकला। गंदम की करप्शन साबित होने पर एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। नादिर अली मक्सी को नौकरी से फारिग कर दिया गया। महकमा खुराक सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे आजाद नौहरियो। हजारों रुपए तनख्वाह, करोड़ों रुपए की करप्शन, गंदम चोर कानून के शिकंजे में आ गया। चोरी में मुलव्वस फूड इंस्पेक्टर नादिर अली मक्सी नौकरी से हाथ धो बैठा। मुलाजिम पर 59 करोड़ 47 लाख 71 हजार रुपए की करप्शन साबित हो गई। महकमा खुराक ने बरतरफी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जैकबाबा से हजारों गंदम की बोरियां 4 साल तक गायब होती रहीं। नादिर मक्सी को बुलाया गया लेकिन वो सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। नादिर मक्सी के खिलाफ महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में तहकीकात शुरू कर दी गई। एंटी करप्शन रकम वसूली की भी कोशिशों में मसरूफ है। आजाद नौरियो, ECT 21। और नाजरीन, शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल हल न हो सके। गैस की बंदिश और बिजली के मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल्स ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। आज भी कराची में गैस और बिजली के मसाइल जूं के तू। शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। टंगी, बल्दिया, किमाड़ी, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल के साथ साथ क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे पोश इलाके भी बिजली और गैस के मसाइल की जद में हैं। शहरी कहते हैं कि गैस की अचानक बंदिश और प्रेशर में कमी से जहनी अजियत में मुब्तला हैं, जबकि बिजली की लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी है, जबकि भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी है। बस यार, कभी लकड़ियों पर करते हैं और कभी अपना सिलेंडर, अपनी मदद आप। भाई मेरे घर का बिल इस टाइम पर 22,000 रुपये गैस का बिल आया हुआ है। भाईजान, गैस तो है नहीं है कराची में, तो ये बहुत सबसे बड़ा मसला बिजली और गैस का है। अभी शरीफाबाद में हम रहते हैं, यहाँ बिल्कुल गैस है नहीं है और लकड़ी जलाने में मजबूर है लोग। ना रात में कैसे ना दिन में कैसे, मतलब जो है ना लोग कभी सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। शहर में बिजली बंदिश का दौरान यहाँ 8 से 10 घंटे तक जा पहुँचा, जबकि 8.5 घंटे से ज़ायद गैस गायब रहने लगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस की बिला तातुल फरामी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है वहाँ बिजली चोरी और बिल क्लियर नहीं है।
कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। गबोल फैमिली ने शौक में 100 से ज़ायद गाड़ियां जमा कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल के साहबजादे की गाड़ियों से मोहब्बत की अनोखी मिसाल। अमेरिका, जापान, जर्मनी समेत दीगर ममालिक से भी गाड़ियां इंपोर्ट की गई। रिपोर्ट करेंगे नम्रा रियासत। शौक का कोई मोल नहीं होता। कबूल फैमिली ने इस कहावत को सच कर दिखाया। मुनफरिद शौक को पूरा करने के लिए 100 से जायद गाड़ियां जमा कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील कबूल और उनके बेटे नादिर कबूल की गाड़ियों की कलेक्शन ने सबको हैरान कर दिया। नादिर कबूल कहते हैं ये शौक खून में शामिल है। दादा ने 1991 में शेवरले खरीदी, जिसके बाद कई मुनफरिद और नायाब गाड़ियां जमा की। फिर दादा जब मेरे जवान हुए, दादा को शौक़ चढ़ा। फिर मेरे वालिद साहब जब 16 साल के थे तो उन्होंने ज़िद की मेरी दादी को, तो दादी ने उस वक्त आज का जो बहरिया टाउन है वहाँ पे एक हमारा प्लॉट होता था, वो बेच के उनको शेवरले कमैरो 1978 में ख़रीद के दी, जो उस ज़माने की समझे टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी कराची की होती थी। फिर उसके बाद बहुत गाड़ियाँ लेते रहे, जमा करते रहे, और हमारे फैमिली का रूल है कि हम गाड़ी कभी बेचते नहीं है। कबूल फैमिली के पास इस वक्त जापान, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया भर से इंपोर्ट की गई नई और कदीम गाड़ियाँ अपनी असल हालत में मौजूद हैं। गाड़ी को जब एक दफ़ा ख़रीदते हैं तो फिर उसको कलेक्ट करते हैं और उसको उसी कंडीशन में कोशिश करते हैं रखे जो ओरिजिनल कंडीशन में आती है। तो अभी भी हमारी फैमिली के पास अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जमा है हमारी गाड़ी के पास, जिसमें आप जर्मन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यू नेम इट, उस तरह की गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद है। नादिर कबूल के मुताबिक गाड़ियाँ जमा करना और इनका ख्याल रखना पसंदीदा मशगला है। गाड़ियों से ऐसी उल्फत है कि 1991 से आज तक कोई भी गाड़ी फरोख्त नहीं की गई। कैमरामैन शरियार अली के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का कहना है कि हुकूमत तालीम दुश्मन पॉलिसी पर उतर आई है। मैट्रिक और इंटर बोर्ड ने इम्तिहानात में इलेक्शन की तरह नताइज तब्दील किए। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है। बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखें। अमीर जमात इस्लामी फिर सिंध हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों पर बरस पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जफर ने इल्जाम आयद किया कि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने मिलकर तालीमी इदारों में मनपसंद अफराद को तैनात किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कई ऐसे तलबा हैं जिन्होंने मैट्रिक में A1 ग्रेड हासिल किया, लेकिन इंटर में कई पर्चों में फेल हो गए। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह करप्शन का धंधा किया हुआ है, तो उसके पेश नज़र तो पैसा है। आप शफाफियत लेकर आइए। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो सारा अमल नहीं होगा। सिर्फ इसके जरिए, इस पूरे अमल के जरिए आप ये ना करिए कि रिश्वत का बाजार गर्म हो, करप्शन हो, मंजूर नज़र अफराद को लाया जाए। और यही वो चीज़ है जो पीपल्स पार्टी कर रही है, पिछले 16 साल से कर रही है। मुनम जफर बोले 5 बार चेयरमैन बोर्ड्स को हटाया गया। अब ये जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी गई। उनके पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं। किस तरह तालीमी निजाम पर तवज्जो देंगे कि कमिश्नर जिसकी ऑलरेडी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपने उनको चार्ज दे दिया, उसके बाद दूसरे को चार्ज दे दिया, फिर बात हुई उनको भी हटा दिया गया। तो बोर्ड नहीं हो गया, ये तो थाना हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कराची के बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदे जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। जमात इस्लामी हर मसले में कराची के शहरियों के साथ है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ नताइज स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा और वालिदैन का रश लग गया। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस इंफॉर्मेशन काउंटर गैर फाल होने से तलबा को परेशानी का सामना है, जबकि मुबैना तौर पर रिश्वत तलबी की भी शिकायत मौसूल होने लगी हैं। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज स्क्रूटनी फार्म जमा कराना भी कड़ा इम्तिहान साबित। लाइनों में लगे तलबा से रिश्वत खोरी की शिकायत। चेयरमैन तलबा के खदशात दूर करने के लिए तैयार। कायम मकाम चेयरमैन की हिदायत पर स्क्रूटनी फार्म जमा कराने का सिलसिला जारी। तलबा की बड़ी तादाद वालिदैन के हमरा इंटर बोर्ड का रुख करने लगी। इंतजामिया की नाअहली के बायस तलबा की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। 8 इंफॉर्मेशन काउंटर्स में से सिर्फ 2 सहूलत के लिए मौजूद। नताइज से गैर मुतमईन तलबा बोले कोई सीधे मुँह बात करने के लिए तैयार ही नहीं। जो पैसे दे रहा है इसका काम जल्दी हो रहा है। अब सुबह से यहाँ आके बैठे हुए हैं। एक तो ये लोग सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते कि आ जाओ बेटे, इस तरह आते हैं तो भगा देते हैं, वहाँ जाओ, ये जाओ, फीस पे करो, वो करो, ये करो। तो हम वालिदैन में काफ़ी परेशान हैं। हम भी यहाँ परेशान होकर बैठे हुए हैं। लाड़काना बोर्ड के जो रिज़ल्ट आया 78% और कराची का 28% रेशो है। आप खुद मवाजना करें कि मतलब लाड़काना बोर्ड इतना पढ़ा लिखा हो गया कि कराची बोर्ड के आगे उसके इतने सारे मतलब मैक्स आधा भी नहीं है।
मकसद ये है, आधे एक घंटा मुझे बीमार आदमी हूँ, बच्चे को लेके आया हूँ, 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए। इतना स्लो काम हो रहा है जिसका जवाब नहीं। पैसे लेके आ रहा है उसका तो काम फटाफट हो रहा है। पैसों की तो दुनिया है आजकल। तलबा के वालिदैन ने भी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि लाड़काना के नताइज इतने अच्छे आए हैं, कराची के बच्चों की तालीम के साथ खेला जा रहा है। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने नताइज में कम नंबर्स का जिम्मेदार तलबा को ठहराते हुए कहा कि नंबर्स के हवाले से तलबा के खदशात दूर करेंगे। इत्मीनान के लिए कापियाँ खोल कर भी दिखा सकते हैं। बच्चे जो है अगर रिजल्ट से मुतमिन नहीं है, उनका प्रोसीजर ये है कि वो हमने एक कमेटी भी कायम कर ली जो उसको प्रूव कर भी रही है। ठीक। और उसके अलावा रेड्रेसल सेल भी कायम कर दिया है। तो वहाँ पे बच्चे जो है अपने स्कूटी फॉर्म जमा कराए हैं। हमने स्कूटी की फ़ी भी 50% कम कर दी है। एक लेक्चरर जो है वो असिस्टेंट करता है, तो उससे सीनियर असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर हेड एग्जामिनर होता है। 3 बंदों के थ्रू वो कॉपी गुजरती है, उसके बाद उसके मार्क्स लेजर पे चढ़ते हैं। अच्छा। अगर वो प्रोफेसर की फाइनल जो है वो असेसमेंट के बाद भी, जो स्टूडेंट के बाद भी अगर वो मुतमिन नहीं है तो कॉपी दिखाएंगे। स्क्रूटी फॉर्म जमा कराने के बाद इंक्वायरी कमेटी तमाम केसों का इनफरादी तौर पर जायजा लेने के बाद किस दिन में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची को पेश करेगी। कैमरामैन सज्जाद के साथ फरहान खान, सिटी 21।